Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 6 February 2021. I am teaching you chapter number 15 and name of the chapter is means of communication. So student, open your book, page number 78. Let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So what is communication? In the previous video we discussed what is communication. What is communication? So see student, we talk to our friends, relative, and even we talk to the strangers also in our day-to-day life. Okay, so what are the methods of communication? For example, if we are speaking, when we speak or listen, read or write to someone, what does it mean? It means we are communicating with the person. ठीक है बेटा, जब हम किसी से स्पीक करते हैं या उसकी बात सुनते हैं, लिसन करते हैं, रीड करते हैं और वी राइट, सो दीज आर द मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन. ठीक है, अदर पर्सन से कम्युनिकेट करने के यही मेथड है, वेदर वी स्पीक, वेदर वी लिसन, read or write. Okay, so this is the way how we do communicating with other person. We share our thought and feeling through communication. And what is the need of communication? Why we need a communication? Because by this we can share our thoughts and feelings with others. Okay, we share our thought and feelings through communication. And now what is communication? I hope now this is clear to all of you. Once again I am repeating. See student, we speak or listen, we read or write. This is the way how we communicate with other person. Is it clear? And what is the need of the communication? Why we need communication? Because we share our thoughts and feelings through communication. Why we need communication? Because by this method we can share our thought and feelings with other person. Okay, and we use different method to communicate with others. These methods of sending and receiving messages are known as mean of communication. इसमें अब मैंने बोला दीज मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस आर नोन एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन. बिकॉज जब इस चैप्टर में अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मीन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया. फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट आर मीन ऑफ कम्युनिकेशंस, और फर्दर ये भी डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में. हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन and what are the mass means of communication. ठीक है,
So all these things we will discuss in this chapter. So after that, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, नाउ इट इज सेड हैज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो नाउ इन प्रेजेंट टाइम द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी स्मॉल बिकॉज देयर आर नो प्लेस इज फार बिकॉज देयर आर many means of communication by which you can communicate to any person who is living in any part of the country, or even you can talk to your relative or friend if they are living in abroad means they are living in some other country. So अगर present time की बात करें तो world has become very small due to advancement in science and technology. ठीक है, and at the same time we will discuss about the past में क्या होता था, पास्ट में जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हाउ द पीपल कम्युनिकेट और सेंड मैसेजेस टू ईच अदर बाय ड्रम बीट मेथड्स आल्सो. दिस मेथड दे फॉलो इन द पास्ट. दे सेंड मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ द पिजन्स आल्सो. ओके, एंड इवन मैसेंजर्स आर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. And even the people use smoke signals also, and how the smoke is produced by burning wood or leaves of the trees. So these are the old methods. These are the old methods which we apply in the past time, but in the present time the world has become very small because due to advancement in science and technology. There are means of communication. ऐसे personal means of communication है कि आप any person who is living in this country or in other country you can talk to your relatives or friend anywhere. Now we will discuss some personal means of communications. ठीक है, अब हम लोग बेटा पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया. अब कम्युनिकेशन में पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टल कम्युनिकेशन. पोस्टल कम्युनिकेशन. ठीक है, सो पोस्टल कम्युनिकेशन में आपके किसकी सर्विसेज आती हैं, पोस्ट ऑफिस की. ओके, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज आर पोस्टल कम्युनिकेशंस. सो इन द पास्ट टाइम दिस मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपका पोस्टल कम्युनिकेशन है बहुत पॉपुलर था इन द पास्ट टाइम बिकॉज व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू स्पीक एंड इवन व्हेन दे लर्न हाउ टू राइट द लैंग्वेज. ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग्स को लैंग्वेज को बोलना भी आ गया और राइट करना भी आ गया, सो इन पास्ट टाइम या ओल्ड टाइम में आप बोल सकते हो दिस पोस्टल कम्युनिकेशन जो था कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था. इज इट क्लियर? बिकॉज अब देखो पीपल नाउ व्हाट आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड इन द पोस्ट ऑफिस. डेटा सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द पोस्ट ऑफिस, दैट इज इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, postcards, stamped envelopes, stamped envelopes. Okay, so these are the services which are present in the post office. Inland letter, this is a light blue color letter. Okay, after writing the you can write letter to your friend or relative and after that उसे पेस्ट कर देते थे. ठीक है, पोस्ट कार्ड
पोस्ट कार्ड क्या है, इन दिस पोस्ट कार्ड व्हाट यू आर राइटिंग, आप कुछ भी इस पोस्ट कार्ड में लिखते हो तो इस मैसेज को कोई देख भी सकता है, क्योंकि ये एनवलप के अंदर नहीं होता है पोस्ट कार्ड, ठीक है। अनदर इज स्टैम्प्ड इन एनवलप, इसमें क्या होता है, यू टेक अ पेपर ऑफ योर कॉपी, A4 साइज का कोई भी आपने पेपर ले लिया, लेटर को लिखा, एंड आफ्टर दैट यू पुट दैट लेटर इनसाइड द एनवलप। और इन तीनों में, इन ऑल दीज 3 सर्विसेज में कॉमन बात क्या थी, इफ यू वांट टू सेंड द लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव, इन तीनों सर्विसेज में कॉमन बात ये थी कि हमें जिससे भी लेटर भेजना होता था या पोस्ट कार्ड भेजना होता था या स्टैम्प एनवलप में लेटर डाल के भेजना होता था, द कॉमन थिंग इज दैट वी मस्ट राइट द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। हम उस पर्सन का क्या लिखेंगे बेटा, एड्रेस लिखेंगे उस पर्सन का, ठीक है। वी मस्ट राइट द एड्रेस, वी मस्ट राइट द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। हम उस पर्सन का क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एड्रेस आल्सो इज अ पिन कोड नंबर, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल यू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हु इज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। तुमने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा जो दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री आल्सो। अब दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली छोटी सी तो है नहीं। तो लेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो आप एड्रेस लिखोगे, एड्रेस मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग द लेटर, और उसका जो भी हाउस नंबर ये सब होगा सब लिख दोगे। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन व्हेन वी राइट ए लेटर दैट इज द पिन कोड नंबर, पिन कोड, एंड दिस इज 6 डिजिट नंबर, दिस इज 6 डिजिट नंबर, ठीक है। सो जो आपकी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज है, पोस्टल कम्युनिकेशन, ये these services you find in all parts of the country, whether it is a village, town, city or big cities. These postal communication services you will find in all parts of the country, whether it is a village, town, city or big city. So student, why this pin code number is very important? Pin code number, after writing the address where we are sending the letter, we write the pin code. See, the importance of the pin code is that after every 2-3 kilometer the pin code of the area is always change, ठीक है। जैसे इतनी बड़ी दिल्ली है, लेकिन जैसे ही आप पिन कोड उसमें लिखोगे, पिन कोड से पार्टिकुलर लोकेशन पता चल जाती है उस प्लेस की कि ये किस प्लेस में जाना है। इज इट क्लियर? क्योंकि देखो दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है ना, मेट्रो सिटी है। अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, सिर्फ आपने नाम लिख दिया तो उससे तो नहीं पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर आपको एग्जैक्टली बता देता है लोकेशन ऑफ द प्लेस कि दिल्ली के किस पार्ट में, क्योंकि वो हर पार्ट्स के पिन कोड नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर एरिया के पिन कोड्स नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ही जब इसकी शॉर्टिंग की जाएगी तो पिन कोड से पता चल जाएगा कि ये दिल्ली के किस पार्ट में इसको जाना है, ठीक है। और आप जब भी लेटर्स लिखते हो तो पोस्ट ऑफिस में अगर नहीं गए हो तो कभी जाके देखना, एक लेटर बॉक्स होता है। क्या होता है? लेटर बॉक्स, ठीक है। तो वी ड्रॉप आवर लेटर इन द लेटर बॉक्स, ठीक है। और सारे पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट ऑफिस की एक व्हीकल भी आती है जो सारे पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स से सारे लेटर्स कलेक्ट करके लेके जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, लेटर्स जब लेटर बॉक्स ओपन किया जाता है सो उसको सेपरेट किया जाता है सभी लेटर्स को। देखो हो सकता है लेटर बॉक्स में बहुत लोगों ने लेटर डाले, हो सकता है किसी का रिलेटिव दिल्ली में होगा, किसी का मुंबई में होगा, कोई कोलकाता में होगा, कोई वाराणसी में होगा। डिफरेंट स्टेट्स में भी लेटर जाते हैं और डिफरेंट सिटीज़ में भी जाते हैं।
तो उसकी वैसे शॉर्टिंग की जाती है। और उस समय ये पिन कोड नंबर बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो लोग को कोई जरूरत ही नहीं होती है नेम और एड्रेस करने, उनको पिन कोड, बिकॉज ये उनका जॉब है। उनको मैक्सिमम जो पीपल्स वर्क करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनको लगभग इतने साल का एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब को, उनको मैक्सिमम प्लेसेस के पिन कोड नंबर पूरे लर्न हो जाते हैं, याद हो जाते हैं मेमोरी में उनके। तो बाय सीइंग द पिन कोड वो तुरंत लेटर्स को शॉर्ट आउट कर लेते हैं कि कौन लेटर किस एरिया का है, ठीक है। इस तरह से उनके छोटे छोटे बैग बना के उनको पैक कर लिया जाता है, ठीक। एंड एवरी पोस्ट ऑफिस व्हीकल ऑफ द पोस्ट ऑफिस विल कम। जैसे वाराणसी की बात करते हैं, जितने भी वाराणसी के पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है, सब में पोस्ट ऑफिस का व्हीकल जाता है, वो सारे लेटर्स कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। वो सारे लेटर्स को क्या करेगा, सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे लेटर्स बेटा पता कहाँ जाते हैं, जो वाराणसी में सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस होगा, सबसे मेन पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ पे जाके इन लेटर्स को शॉर्ट आउट किया जाता है कि कौन लेटर्स कौन दिल्ली जा रहा है, कौन लखनऊ जा रहा है। इस ढंग से सबको अलग अलग किया जाता है और उनको पैक कर लिया जाता है, ठीक है। और लेटर देखो, हमारी कंट्री में देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है। और वी हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन आवर कंट्रीज। तो अब देखो, बाई ट्रेन भी ये लेटर्स जाते हैं, ठीक है, रेलवेज के थ्रू भी ये लेटर जाते हैं। अब मान लो दिल्ली के जितने भी लेटर कलेक्ट हुए, तो वो वाले पैकेट हम लोग किस ट्रेन में रखेंगे, दिल्ली वाली ट्रेन में, क्योंकि वो दिल्ली जा रही है। जो मुंबई के लेटर होंगे वो मुंबई रेलवेज ले जाएगी। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लेटर जाते हैं। और आफ्टर डैट जब लेटर, मान लो किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने वाराणसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वाराणसी से सारे लेटर जब आते हैं तो सारे लेटर यहाँ के मेन पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है। पूरे लेटर, जितने भी लेटर वाराणसी के लिए आते हैं, देन दे गो इनटू द मेन पोस्ट ऑफिस, और मेन पोस्ट ऑफिस से फिर उनको शॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। फिर क्योंकि वाराणसी बहुत बड़ी सिटी है, अब मेन पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, अब एरिया वाइज किस वाराणसी के किस एरिया में है, तब इस एरिया का कैसे पता चलता है, विद दिस पिन कोड नंबर। एरिया का कैसे पता चलता है, पिन कोड नंबर, क्योंकि ये 6 डिजिट का नंबर होता है और एरिया वाइज ये नंबर क्या चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जैसे वो लोग पिन कोड नंबर पढ़ते हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये पार्टिकुलर किस प्लेस को जाएगा, तो ये उस पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है। इस तरह लेटर्स जिस एरिया के होते हैं उस पोस्ट ऑफिस में सेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से जब पोस्ट ऑफिस में लेटर आते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में द पर्सन हु डिलीवर लेटर टू डोर, दैट इज नोन एज अ पोस्टमैन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टमैन, ठीक है। अ पर्सन हु डिलीवर लेटर फ्रॉम डोर टू डोर, दैट पर्सन इज नोन एज ए पोस्टमैन। और पोस्टमैन भी किसी पोस्ट ऑफिस में एक ही पोस्टमैन नहीं होता है, ठीक है। अगर वो एरिया बड़ा है तो दो से चार पोस्टमैन भी हो सकते हैं, और वो अपने अपने एरियाज के लेटर्स कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर डोर टू डोर क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। तो पास टाइम में स्टूडेंट ये पर्सनल मीन ऑफ, इसे पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्यों बोला, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो टू योर फ्रेंड और रिलेटिव, ये उसी के पास जा रहा है। आपका फ्रेंड और रिलेटिव आपके लेटर को पढ़ते हैं, दे रीड योर लेटर एंड आफ्टर दैट दे रिप्लाई इट। सो आपको आज के टाइम से प्रेजेंट के टाइम में देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा इसमें प्रोसेस लगती है, क्योंकि जो नॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनलाइन लेटर, इन्हें 6 to 7 डेज लग जाते हैं जाने में। ये जो स्टैम्प्ड इन्वेलप्स होते हैं ये जल्दी जाते हैं, ये फास्ट जाते हैं, ठीक है, ये फास्ट जाते हैं ये, क्योंकि इसमें जो स्टैम्प एनवलप्स है इसमें यू हैव टू पे मनी, उसका वेट होता है। जो पेपर आप लेटर लिखोगे उसके बाद जितना उसका वेट होता है उस हिसाब से उस पर स्टैम्प लगती है एनवलप पे। सो एंड फॉर दिस यू हैव टू पे मनी, इसके लिए आपको मनी पे करनी पड़ती है। तो ये सर्विसेज क्या है, थोड़ी फास्ट है। इनलाइन लेटर से स्टैम्प एनवलप फास्ट जाते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं दिया है, ज़्यादा में तो स्पीड पोस्ट भी है, रजिस्ट्री भी है। दीज आर आल्सो द सर्विसेज विच आर प्रेजेंट इन द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ऐसे अगर सारी सर्विसेज की बात करें तो इनलाइन लेटर है, पोस्ट कार्ड है, स्टैम्प एनवलप्स है,
रजिस्ट्री वी कैन सेंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट वी कैन सेंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, मनी ऑर्डर, ओल्ड टाइम में मनी भी भेजी जाती थी पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। तो आज की डेट में ये सब सर्विसेज क्या बंद हो गई है। एक और सर्विसेज थी पोस्ट ऑफिस में, डेट इज द टेलीग्राम। मैं इस बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसी सर्विसेज थी। अगर कोई अर्जेंट मैसेज हमें कुछ भेजना है अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को, तो ओल्ड टाइम में टेलीग्राम इज अ सर्विस बाय विच वी सेंड द अर्जेंट मैसेजेस। सो आज और पोस्ट ऑफिस में आप मनी भी जमा करा सकते हो। यू कैन डिपॉजिट योर मनी आल्सो इन द पोस्ट ऑफिस। देयर आर मेनी स्कीम्स इन द पोस्ट ऑफिस इफ यू वांट टू। जैसे हम लोग, हमारी मनी कहाँ सेफ होती है, अर्लियर चैप्टर्स में हमने पढ़ा होगा, नेबरहुड चैप्टर में, वी डिपॉजिट आवर मनी इन द बैंक and precious thing in the bank so that our money and precious things are safe। in the same manner student, अगर आप चाहो तो पोस्ट ऑफिस में भी अपनी मनी को डिपॉजिट करा सकते हो, ठीक है। सो ओल्ड टाइम में दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, बहुत पॉपुलर था, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे, अगर प्रेजेंट के अब की हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में ड्यू टू एडवांसमेंट एंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज तो चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, ठीक है। आप किसी को लेटर लिखोगे वो 6 डेज में जाएगा, इससे अच्छा आप एक बार मोबाइल फ़ोन लगाओगे तुरंत बात कर लोगे। लेकिन ओल्ड टाइम में जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने बेटर नहीं थे, तो उस समय ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका पोस्टल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। वी नीड टू पेस्ट ए पोस्टेज स्टैम्प ऑन द एनवेलप, आल्सो द पिन कोड, ये सब आपको बता दिया। और पिन कोड, ये एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, पिन कोड में कितने डिजिट नंबर्स होते हैं, तो हमेशा याद रखिए बेटा, पिन कोड में 6 डिजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। पिन कोड्स में कितने डिजिट नंबर होते हैं, 6 डिजिट नंबर्स होते हैं पिन कोड में, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया पोस्टल कम्युनिकेशन हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की अब बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब आपका जो फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन आया, वो आया टेलीफोन। ये क्या आया आपका, टेलीफोन आया, ठीक है। अब पोस्टल कम्युनिकेशन के बाद, ठीक है, फिर क्योंकि नए नए इन्वेंशन होते जा रहे थे, ठीक है, तो अब जो आप लोग का आया वो आया टेलीफोन। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट means of communication। telephone is the fastest mean of communication, ठीक है। एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राम बेल। इसे आप अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन दिस लाइन इन योर बुक आल्सो। Many times this question asked in the examination, who invented the telephone, who invented the TV, who invented the radio. These are very common questions which are asked in the examinations. So it was invented by Alexander Graham Bell। Alexander Graham
ठीक है। सो टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन कैसा मीन ऑफ कम्युनिकेशन है? फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल। ठीक है, इसने इन्वेंट किया है। अब देखो टेलीफोन जब आया तो भी लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए, ये भी बहुत फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। देखो लेटर्स को, जैसे मैंने अभी प्रीवियस वो मीन पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन में अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पोस्टल कम्युनिकेशन, इनलैंड लेटर भेजते थे आप लोग, पोस्ट कार्ड भी भेज सकते थे, ठीक है, स्टैम्प्ड इनवलप्स भी मेथड था, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर इन द पास्ट। लेकिन देखो दे टेक टाइम, उनको लेटर्स को जिस आप रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखते थे, दे टेक टाइम टू डिलीवर, उनको टाइम लगता था, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। लेकिन अब देखो जब टेलीफोन्स आए तो उस समय टेलीफोन क्या है, फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। क्यों भाई? जस्ट बाय डायलिंग द नंबर, ठीक है, आप नंबर डायल करते थे एंड यू आर एबल टू टॉक टू योर फ्रेंड, रिलेटिव और एनी वन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप नंबर डायल करोगे वो रिंग करने लगेगा, और जिससे आप बात करना चाहते हो आप उससे बात कर सकते हो, वेदर दैट पर्सन इज इन कंट्री और वेदर दैट पर्सन इज एनी इन अनदर कंट्री। सो अब जो टेलीफोन ने और भी ज़्यादा चेंजेस ला दी, क्योंकि देखो अब हमें कोई भी बात करनी होती थी टेलीफोन से, हम किसी भी क्योंकि आप टेलीफोन में आप बोल भी सकते हो और दूसरों की बातें सुन भी सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, ये भी पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है आपका टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन इज द पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, टेलीफोन क्या मैंने बोला फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, बट जस्ट बाय डायलिंग द नंबर you can talk to any person who is living in any part of the country or whether that person is living in abroad, means in another country, ठीक है। so the what type of a services provided by the telephone? One is C, services provided by the telephone. C, PCO. PCO is public call office. इज इट क्लियर? जब टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ बेटा, तो स्टार्टिंग में जब टेलीफोन आया तो ऐसा नहीं था कि हर किसी के घर में टेलीफोन हो गया, ठीक है। सो एट दैट टाइम देयर आर पब्लिक कॉल ऑफिसेस थे जहाँ पे टेलीफोन अवेलेबल होते थे, एंड बाई पेइंग द मनी वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव और एनीवन in any part of the country, or maybe that person is in abroad, means in other country. So that is a public call office, that is known as PCO, ठीक है। And what type of a facilities provided by the telephone? One is STD and another is ISD. So what is STD? STD is a subscriber STD is subscriber trunk dialing. ठीक है, इन जब बुक इट इज़ गिवन ओनली STD, लेकिन ISD भी होती है, ठीक है। ISD में यहाँ क्या है, STD क्या है, STD इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ISD हो जाएगा तो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाएगा, ठीक है, कि आप बाहर कंट्रीज में भी बात कर सकते हो, ठीक है, विद दिस फैसिलिटीज़। और जो मैंने तुम लोग को बताया ना GPO, जो सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे, तो उस GPO इज फुल फॉर्म इज जनरल पोस्ट ऑफिस। GPO ये भी फुल फॉर्म लर्न कर लेना, GPO की है जनरल पोस्ट ऑफिस।
ठीक है, ये हो गया. एंड आफ्टर दैट okay, we will continue this topic in the next video. Okay, thank you student.